Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो अभी तक हमने कोनिक सेक्शन के कुछ सेक्शंस देखे पैराबोला स्पेशली पैराबोला के सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग आज शुरुआत में देर आर थ्री सो विल गो थ्रू दोज थ्री न्यूमेरिकल्स और उसके बाद हम लोग एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ओके सो न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर वन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और टेंजेंट कहाँ पे निकालना है टेंजेंट एट 1 - 3 राइट ओके एनीवन कैन एनीवन क्विकली टेल मी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है टू पैराबोला जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्विक 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 करेक्ट ओके सो अभी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इसमें हमारे पास कौन से क्या डेटा अवेलेबल है बाय द वे बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो y है और ये जो x है ये वेरिएबल्स है राइट इसमें कांस्टेंट्स एंड कोएफिशिएंट्स पैरामीटर्स वो है a x1 एंड y1 these are known parameters these are known terms ठीक है ये हमने पहले ही देखा है सो x1 और y1 what is x1 y1 in this case 1 - 3 exactly so x1 y1 is point of contact tangent का और पैराबोला का एग्जैक्टली x1 y1 वो है 1 - 3 ए नहीं पता हमें ए कैसे निकालेंगे राइट दिस इज 9 सो ए निकलेगा 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x जो कि होता है 4ax राइट सो आपका 4a इन दिस केस इज 9 so 4a is 9 a is 9/4 okay so let's substitute y into y1 है आपका -3 2 times a is 9/4 x plus x1 क्या है आपका 1 right so -3 times y 9/2 times x plus 1 ये 2 इधर चले जाएगा -6y is 9x plus 9 9x plus 6y plus 9 equal to 0 अभी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे 3x plus 2y plus 3 equal to 0 right simple equation of tangent all we had to know is general equation point of contact और यहाँ से a की वैल्यू right okay now second one find the equation of tangent to the parabola y square equal to 12x equation of tangent at point 25 again x1 y1 दिया है
to the parabola, tangent to the parabola at the point parabola is 12 y square equal to 12x. Same method, we don't have to solve it, right? Okay. So, yeah. Let me quickly check the way they have solved. Oh, so find the equation of tangent to the parabola y square equal to 12x from the point 25. So 25 point is not on the parabola, right? So the first question was find the equation of tangent to the parabola at, उसका मतलब क्या होता है? Find the equation of parabola at, this is parabola, find the equation of tangent to the parabola y square equal to 9x at 1 minus 3. Okay, which is somewhere like this. ये tangent है, right? This is 1 minus 3 point at this point. इन्होंने क्या कहा यहाँ? Find the equation of tangent to the parabola y square equal to 12x from the point 2, 5. So tangent, right? So now equation of tangent from the point, वो उसका जनरल इक्वेशन क्या था? अगर मेरे पास पैराबोला है y square equal to 4ax, so what is the general equation of tangent? From the point, y1 x1 is at the point. I am talking about equation of tangent from the point. Exactly. Y equal to mx plus a by m. In this case, m and a are the known parameters, right? But if we want to solve the problem in the reverse direction, जहां हमें m पता नहीं है, in that case, क्योंकि हमारे पास दो टेंजेंट है फ्रॉम द पॉइंट, राइट? तो ये m है, ये m1 होगा, ये m2 होगा, राइट? लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें पॉइंट पता है, अभी m1 और m2 निकालना पड़ेगा, राइट? राइट, so we will start from equation of parabola y square equal to 12x, उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मिलेगा y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब ये टेंजेंट कहाँ से शुरू होती है? 0.25 से, मतलब x और y क्या है? 2 and 5। पैराबोला का a क्या है? 12 इज इक्वल टू 4a, a इज 3, राइट? सो अगर ये सारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो 5 इक्वल टू 2x प्लस 2m प्लस 3 बाय m, और इसको सॉल्व अगर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5m इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गया m में, राइट? अभी m जो है वो अननोन है, इसलिए हम m का इक्वेशन देख रहे हैं, है ना? वी न्यू कि टेंजेंट कहाँ से आती है, वी न्यू पैराबोला पता है हमें, उसकी वजह से a निकाल लिया हमने। अभी टेंजेंट का इक्वेशन हमें चाहिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इज द बेस्ट मेथड इन दिस केस, राइट? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है जो स्लोप के फॉर्म में है, तो उस इक्वेशन से ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये पैराबोला को भी सेटिस्फाई करता है और ये पॉइंट को भी सेटिस्फाई करता है ना? तो इसलिए हम लोग वो पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन में डाल पाए, पैराबोला का पैरामीटर, एंड देन वी फाउंड दिस इक्वेशन।
इससे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे m के? दो मिलने चाहिए, दो टेंजेंट है ना? चलो लेट्स फाइंड आउट. No, this is not possible. Minus 2m squared. क्या है आप लोगों का? m equal to 1 and m equal to 3/2. एग्जैक्टली. सो ये हमें दो स्लोप्स मिल गए टेंजेंट के, राइट? राइट. सो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन फिर से y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, m1 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 m2, and second will be y equal to m2x plus a by m2, है ना? सो यहाँ पे y इक्वल टू 1x प्लस a क्या था हमारा? 3/1. So y equal to x plus 3, x minus y plus 3 equal to 0 is one equation. Second equation is y equal to आपका m2 है 3/2x प्लस 3/3/2. तो ये 3 गया और ये 2 ऊपर आ जाएगा. सो y इक्वल टू 3/2x प्लस 2. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 2y इक्वल टू 3x प्लस 4. So 3x minus 2y plus 4 equal to 0. Right? क्लियर है? क्लियर है. सो आइडिया क्या था इसमें सॉल्व करने का? बिकॉज ये फ्रॉम द पॉइंट दिया है हमें, दैट मीन्स ये पॉइंट एट द पैराबोला नहीं है, इट इज अवे फ्रॉम द पैराबोला. पैराबोला से दूर है, वहां से दो टेंजेंट आएंगी फिर, राइट? सो पैराबोला हमें दिया है, टेंजेंट का जनरल इक्वेशन हमने देखा और हमें पता चला कि पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हम टेंजेंट निकालने के लिए लगा सकते हैं. तो ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट्स है. और फिर इसमें सिंस हमें m पता नहीं है तो m के फॉर्म में इक्वेशन बनाया हमने. a सब्सटीट्यूट किया, x एंड y सब्सटीट्यूट किया. कौन से पॉइंट? x एंड y, जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है उसका x एंड y डाल दिया उसमें, क्योंकि वो तो सेटिस्फाई करना चाहिए उसने, बिकॉज इट्स गोइंग थ्रू दैट पॉइंट. फिर हमने उसका इन द फॉर्म ऑफ m का इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. सो विल गेट टू सॉल्यूशंस. टू सॉल्यूशन मिलने ही चाहिए क्योंकि दो टेंजेंट है उस पॉइंट से जाने के लिए. सो ये फिर हमने m निकालने के बाद वी सब्सटीट्यूटेड, राइट? सो ये लॉजिक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, अगेन फ्रॉम द पॉइंट -4 -9 to the parabola y square equal to 16x are perpendicular to each other. मतलब दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दो टेंजेंट. मतलब पैराबोला ऐसा है और हमें ऐसा पैराबोला है एंड देन दो टेंजेंट. ओके, सो दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस वन इज सेकेंड टेंजेंट. ये परपेंडिकुलर है.
राइट, ये पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट -4 -9, करेक्ट। ओके, सो ये गिवन है और ये गिवन है। सो इसमें गिवन में क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें a मिल जाएगा, a इक्वल टू 4, क्योंकि 4a इक्वल टू 16 है तो a इक्वल टू 4 होगा, है ना। 4a इक्वल टू 16 है तो a इक्वल टू 4, ये हो गया, हम ये पता है। और एक चीज पता है, परपेंडिकुलर हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, एग्जैक्टली exactly। ये जो दो टेंजेंट है इनका स्लोप अगर m1 एंड m2 है, सो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। अगर ऐसे दो टेंजेंट इस पॉइंट से जा रहे हैं जिन दोनों का स्लोप माइनस मल्टीप्लीकेशन -1 है, देन वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन लॉजिक देखा जाए तो क्या हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर वो -1 आ जाता है दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर। लॉजिक समझ में आ गया? किसी को क्वेश्चन इसके बारे में, एनी डाउट? नो। सो लॉजिक था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में, राइट। ओके, वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ये पता होना चाहिए हमें पहले तो, राइट। एंड देन वो पॉइंट भी पता होना चाहिए हमें, x1 y1 बाहर का, विच इज -4 -9, राइट। देन क्वाड्र सिम सेकेंड लॉजिक सिंपल है, उसी में पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है, दैट इज quadratic equation in the form of m, or quadratic equation in m, राइट। उसके बाद अगर m1 m1 इंटू m2 क्या है, m1 एंड m2 क्या है, सॉल्यूशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। m1 इंटू m2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन का लगा दिया, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है। ओके, सो ये है लॉजिक। जब तक ये लॉजिक क्लियर नहीं है और जब तक लॉजिक फॉर्मेशन की आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपको 15 सेकंड में पता नहीं चलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, स्पेशली इन IIT JEE, IIT JEE एडवांस, जहाँ पे समटाइम्स यू हैव टू फिगर आउट कि ये अलग क्वेश्चन लग रहा है, हाउ डू आई सॉल्व, राइट। 1000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, लेकिन वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो वहां सिर्फ लॉजिक ही काम आने वाला है। आपको ट्रेन करना पड़ेगा उस लॉजिक पे। ओके, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस एवरी डे, लॉजिक। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स 1000 न्यूमेरिकल सॉल्व करना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इज रिक्वायर्ड, बट बिना लॉजिक के 1000 सॉल्व करना, फिर इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है, मेडिकल फील्ड में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि बस 1000 क्वेश्चन सॉल्व करके है ना, कंसेप्ट तो हमारे क्लियर है नहीं। 1000 न्यूमेरिकल से यू कैन पास द एग्जाम, यू कैन गेट इनटू IITs, आई हैव सीन। सो बट इफ यू हैव लॉजिक, जो आपका लॉजिक आपके प्रैक्टिस को अगर बैक कर रहा है, देन दैट गिव्स यू, दैट पुट्स यू इन अ पोजिशन जहां पे आप खुद से भी, आपके पास प्रैक्टिस है लेकिन आप लॉजिकली भी स्ट्रांग हो। सो आपको अगर मैं कुछ रैंडम नया न्यूमेरिकल और नए प्रॉब्लम्स या नया रिसर्च स्टेटमेंट अगर फेंक दिया आपकी तरफ, यू विल बी एबल टू हैंडल थ्रू लॉजिक एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस विच इज योर प्रैक्टिस। गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ प्रैक्टिस वाले हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस वालों को क्या चाहिए,
वैसा ही न्यूमेरिकल चाहिए जैसे 1000 सॉल्व किए थे, अलग आ गया तो दे कैन नॉट सॉल्व बिकॉज दैट नीड्स लॉजिक, दैट नीड्स अंडरस्टैंडिंग। लॉजिक तभी बनता है जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। यस और नो? सो ऑलवेज लॉजिक कम्स फर्स्ट, बट जस्ट बिकॉज वी आर लॉजिकल डजंट मीन कि हमें प्रैक्टिस नहीं करनी या बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा। नो नो नो, लॉजिक प्लस प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस इज डिजास्टर इन फ्यूचर। अभी पास हो जाओगे, ठीक है? ओके, सो ये लॉजिक हमने सेट कर लिया। नाउ विल गो हेड। हमारे पास ओके, पैराबोला का इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। सो अगर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू हो गई 16 सॉरी, एंड देन a will be equal to 4. Okay, now tangent is from the point away, पॉइंट आउटसाइड पैराबोला जहां से दो टेंजेंट आएगी, वो पॉइंट है -4 -9, राइट? अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। सो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू m इंटू -4 प्लस 4 बाय m। सो ये -9m -4m स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 4m² -9m -4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट? इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं जो हमने 10 तक पढ़ा है? m1 एंड m2, टू सॉल्यूशंस। हाँ, कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम सॉल्यूशन हो सकते हैं। m1 एंड m2 बोथ आर सेम पॉसिबल, राइट? जैसे x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका x1 एंड x2 इज इक्वल टू 2, राइट? राइट, हाँ। सो बोथ आर सेम, बट x1 और x2 एग्जिस्ट करते हैं, देर आर टू सोल्यूशन, बोथ कैन बी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? सो m1 m2। नाउ ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन होंगे दो, x1 एंड x2, राइट? जिसको हम m1 एंड m2 भी बोल सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? कांस्टेंट c, राइट? यू आर राइट, कांस्टेंट c डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट? और यहां प्लस साइन होता है, ओके? सो हमारे केस में प्रोडक्ट ऑफ द टू सॉल्यूशन विल बी कांस्टेंट c, क्या है आपका? प्लस, लेकिन ये कांस्टेंट क्या है? -4 डिवाइड बाय +4, ओके? विच विल बी इक्वल टू -4 बाय +4 -1। सो देर आर टू टेंजेंट्स m1 एंड m2, एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही थी, राइट? इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या मिला था हमें? 4m² माइनस 9m -4 इक्वल टू 0। सो ये कंबाइंड इक्वेशन है लाइन का, इसमें दो लाइन मिलेंगी हमें, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो इसलिए ये m1 जो है ये एक स्लोप होगा, m2 एक स्लोप होगा, और बिकॉज हमें ये प्रूव करना है, कि m1 m2 m2 हैज टू बी -1, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट। क्लियर? कोई क्वेश्चन या फिर एनी स्टेप यू वांट मी टू रिपीट? ओके, ओके, okay, so now we'll go and see ellipse in detail. 7.2
ellipse. So इसमें कुछ section है standard equation, yes, and then equation of tangent, then condition of tangency, and then fourth one auxiliary circle and director circle of the ellipse. ठीक है, auxiliary and director circle. So these are four major concept. आज we will understand standard equation. ठीक है. So in nature we have something which we already know is कि earth moves or revolves around sun in an elliptical orbit, right? So ellipse की प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि देर आर, जैसे सर्कल है उसका एक सेंटर है, ellipse kind of have two focus points. So if ellipse is kind of a shell, अगर एक शेल लिया तुमने, मेटालिक शेल अपने सराउंडिंग में, एंड देर आर टू पीपल स्टैंडिंग here and here at the focus. So if you shine light on this, the light will travel this way and then reach another focus point. Okay, so जैसे सर्कल में if you shine light like this, it will come back to you again. But in case of ellipse, it will reach another focus point. So in a way, these two focus points or focal points are connected to each other. And in our solar system, sun happens to be at one of the focus. Okay. And then earth is revolving around sun in that elliptical orbit. Now we want to understand ये ellipse के क्या क्या properties होते हैं. How can we calculate, how can we use ellipse की geometry in mathematics? उसकी equation क्या है, dimensions क्या है, x and y related कैसा है, for example इसकी length कितनी है, focus point एक दूसरे से कितने दूर है, right? ellipse का directrix जैसे हमने parabola का directrix देखा था. So what is relation between the ellipse and directrix, right? So we'll see that. But before that हमने देखा था कि कोई भी conic section में there was a relation SP upon PM is equal to E. Okay, what is that? अगर कोई पैराबोला है, ये पैराबोला का फोकस पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, सो ये S हो गया और ये P हो गया. उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता है पैराबोला का. SP upon PM is equal to E, but E equal to 1 in case of parabola. That means SP और PM दोनों सेम है. क्लियर? आपको आपको ये डायग्राम्स ज़्यादा अच्छे याद होगा. लेट मी ड्रॉ अ बेटर पैराबोला जो रिप्रेजेंट अच्छे से रिप्रेजेंट करे. ओके, सो आपका SP इज इक्वल टू PM इन पैराबोला. ठीक है. नाउ ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया आपका फोकस ऑफ पैराबोला, राइट? एंड दिस इज वर्टेक्स, राइट? पॉइंट P. नाउ इन केस ऑफ इलिप्स, हमारे पास दो फोकल पॉइंट है
कंसिडरिंग कि इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन से जा रहा हो, राइट, एक्स वाई वाई एक्स, ठीक है। एंड नाउ इट ऑल्सो हैज डायरेक्ट्रिक्स, बट डायरेक्ट्रिक्स इस केस में थोड़ा स्पेशल है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पैराबोला। हाँ, तो पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, पैराबोला के केस में ये इक्वल थी लेंथ इनकी, ये देखो, राइट। बट इस केस में फॉर एग्जांपल ये एक फोकस पॉइंट है एस, ये एलिप्स पे एक पॉइंट हो जाएगा पी, एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगा पी एम। पैराबोला में एस पी अपॉन पी एम जो है, जो सारे एस पी अपॉन पी एम, एस पी पी एम, एस पी पी एम, राइट, इनका रेशियो कांस्टेंट है, वो है ई, बट पैराबोला में इक्वल टू 1 है, इलिप्स में ई इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। क्या हो सकता है? 0.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, बट इट कैनॉट बी इक्वल टू 0, इट कैनॉट बी इक्वल टू 1, इन दोनों के बीच में चलेगा। दैट मीन्स यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी में फर्क है, दिस इज बिगर, राइट, देन दिस सेगमेंट, ओके। कितना? एस पी, मतलब यहां से यहां तक, इसको पॉइंट ए लेते हैं, स्पेशल पॉइंट है, पी ही है बट वो स्पेशल है बिकॉज वो पॉइंट वर्टेक्स भी है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट ए। सो एस पी विच इज इन दिस केस एस ए डिवाइड बाय ए, ये जो पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स और एक्स एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन, इसको जेड बोलते हैं, ये भी एम पॉइंट है बट एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज जेड। So SA upon AZ is E. That means SA is E times AZ. So रेशियो क्या हो गया? SA और AZ में E is to 1. अगर हम लोग AZ को 1 अज्यूम करते हैं तो SA will be E. So आपका रेशियो E is to 1 हो गया, राइट। सो इलिप्स में not only we have one focus, we have two. So ये this same thing will apply to this focus S dash, SP से PM, ये भी E is to 1 होगा, ये भी E is to 1 होगा, राइट। नाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमें ये देखना है कि इसके डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है, राइट, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्या लेंथ है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितनी लेंथ है, हाउ इज दिस पॉइंट रिलेटेड टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी निकल जाएगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स है, राइट। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ आर दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू ईच अदर, और वो रिलेशन यूज करके हम लोग एलिप्स का जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, ओके। ओके, सो ये हो गया पॉइंट्स एस, एस डैश, ये हो गई ओरिजिन 0 0, एस फोकस को हम लेंगे H0, ये वर्टेक्स जो है स्पेशल वर्टेक्स ए, ये हो गया A0,
और ये जो यहाँ पे z है, पॉइंट z, ये हो गया k0। ओके, तो अभी इसके मीनिंग भी मैं बता देता हूँ। ये हो गया -h0, ये हो गया a डैश -a0, ये आपका z डैश which is -k0। now what is this line? this is डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है? पॉइंट z पे। एक्स एक्सिस क्या है? इलिप्स की मेजर एक्सिस। व्हाट इज एक्स एक्सिस? इलिप्स की मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्यों? क्योंकि उस एक्सिस के अराउंड इज दिस सिमेट्रिक। जो मेजर एक्सिस है इलिप्स की, व्हाई डू वी कॉल इट एक्सिस? व्हाट डू यू थिंक? उसको मेजर एक्सिस या फिर एक्सिस क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली ये एक्सिस इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों को सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट? एंड सो इज दिस एक्सिस। ये एक्सिस भी सिमेट्री में डिवाइड कर रहा है, राइट? सो दिस इज वाई एक्सिस। सो योर वाई एक्सिस इज योर माइनर एक्सिस। ओके ओके, सो अभी ये एलिप्स बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने दो फोकल पॉइंट लिए, S1 एंड S एंड S डैश, जो ओरिजिन से कितना दूर है? H0 -H0, राइट? और उसके जो एक्सिस है, उस एक्सिस में वर्टेक्स कट करेगा, राइट? ए पॉइंट में, और यहां पे भी कट करेगा पॉइंट बी में और बी डैश में, राइट? यस, राइट। सो वो हो गया। अभी ये एक्स एक्सिस, नाउ वी हैव द फोकस पॉइंट। अभी जो बेसिक डेफिनेशन है एलिप्स का, एस पी टू पी एम, जहां पे एस पी अपॉन पी एम इज ई, but since e is less, in this case e is less than 1 or greater than 0, वही स्पेशल केस में हम लोग a से s से a तक और a से z तक लगा सकते हैं। एस ए अपॉन ए जेड इज ई। सो s से a तक रेशियो होगा e वर्सेस a से z तक 1। ओके, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में दैट इज द रिलेशन, राइट? एम पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू द डायरेक्ट्रिक्स। इस एक्सिस में भी सेम हो रहा है, एस से लेके ए तक और एस से ले ए से लेके जेड तक। अब जेड पॉइंट भी स्पेशल पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स पे, दैट इज ऑल्सो लाइन ए टू जेड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, राइट? ये भी तो परपेंडिकुलर है, स्पेशल केस हो गया उसका। ओके, सो एस ए अपॉन ए जेड इज ऑल्सो ई। नाउ अगर मैं ऐसा करता हूं, ये एक स्पेशल केस हो जाएगी, एस से लेके यहां तक और फिर यहां तक। वैसा ही ये जो एंगल है इसका मैं डिक्रीज करते जाऊंगा, तो व्हाट आई विल फाइंड इज एस से लेके ए तक एंड देन वापस ए से लेके जेड तक। ओके, एस से लेके ए डैश तक एंड देन अगेन ए डैश से लेके जेड तक। सो ये हमारा स्पेशल केस हो गया, एस से लेके पी, पी से लेके एम। अगेन ये e इज टू 1 में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड या फिर m is also e is to 1. That means your s a dash is again e times a dash z. So ये भी e is to 1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? So we have few information here.
हमारा फोकस हमें पता है, वर्टेक्स पता है, जेड पॉइंट पता है, बट एक दूसरे में रिलेशन नहीं पता इनका. हाउ इज एस डिपेंड ऑन ए डिपेंड ऑन के और जेड, राइट? सो वो नहीं पता. सो अभी जो भी डेरिवेशन करेंगे, वी आर डूइंग दैट टू फिगर आउट इन दोनों इनमें रिलेशन क्या है, सो दैट जब हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे एलिप्स का, वो हमें इजी हो जाएगा समझने में, डिराइव करने में. सो पहला, एस ए अपॉन ए जेड इज ई, एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड इज ई. ओके, नाउ बिकॉज in first case एस ए एंड जेड, ठीक है. सो इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूं. एस ए एंड जेड, ये एस पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, एंड ये जेड पॉइंट है इलिप्स का, राइट? यहाँ पे वर्टेक्स है इलिप्स का, वर्ट इलिप्स ऐसा जा रहा है. ये फोकस है इलिप्स का, विच इज एच जीरो, ए इज ए जीरो, जेड इज के जीरो. दिस डिवाइड्स इन ई इज टू वन. सो हमने वेक्टर चैप्टर में देखा था सेक्शन फॉर्मूला. सो अगर सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इज डिवाइडिंग s एंड z इंटरनली, पॉइंट a इज डिवाइडिंग sz internally, right? So point a will be e times, point a is the x coordinate of point a, small a. Small a is x coordinate of point a. So e times k and 1 plus 1 times h. e times k plus 1 times h. जैसे अगर ये एक सेगमेंट है, ये पॉइंट है, ये ए बी एंड सी, ये डिवाइड्स इन रेशियो m इज टू n. इसका अगर कोऑर्डिनेट्स है a ज़ीरो, ये है b ज़ीरो, और ये है c ज़ीरो, तो c विल बी m इंटू बी प्लस n इंटू a अपॉन m प्लस n. इन सिमिलर e इंटू के 1 इंटू h अपॉन e प्लस वन. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ए ई प्लस ए इक्वल टू ई के प्लस एच. ये इक्वेशन ध्यान में रखना है हमें, ठीक है ना? अभी हमने अगेन क्या किया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीन पॉइंट देखे. अभी हम लोग देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए डैश, और ये पॉइंट जेड. ओके, क्लियर? सो ये पॉइंट जेड है, ये था आपका S, और ये था आपका A डैश, राइट? सो Z was K0, S was H0, A is minus A0. ओके, नाउ यहाँ पे पॉइंट A डैश is dividing SZ externally, right? So बट अगर आप इलिप्स पे अगर देखोगे, तो अगेन यहाँ पे ये जो पॉइंट S है, एस पी एंड M, ये वैलिड है. सो दैट मीन्स S से जब A तक जाएंगे और A से फिर वापस Z तक जाएंगे, तो एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड ई, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, राइट? दैट मीन्स S से लेके A डैश तक E है, और A डैश से लेके Z तक इज वन रेशियो. एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड इज ई इज टू वन.
राइट? ओके, नाउ हमें माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। माइनस ए कैसे एस और जेड पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ? देर इज अ सेगमेंट ए एंड बी, ए 0, बी इज बी 0, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है सी विच इज कटिंग पॉइंट ए एंड बी एक्सटर्नली। सो ये हो गया इसमें रेशियो m is to n, तो पॉइंट सी 0। सो हमें c मिलेगा nb प्लस ma अपॉन n प्लस m। एम आई करेक्ट? n टाइम्स b और m टाइम्स a अपॉन m प्लस n, राइट? सो वैसे ही इस केस में होगा e टाइम्स k, ओ नो 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 नो, एक्सटर्नली जब डिवाइड करते हैं, राइट, सो एन बी माइनस एम ए अपॉन एन माइनस एम, या फिर एम ए माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन। ओके, सो ई टाइम्स के अपॉन वन माइनस वन टाइम्स एच अपॉन ई माइनस एच, राइट? सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस ए ई प्लस ए इज इक्वल टू ई के माइनस एच। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो वी हैव टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन था ए ई प्लस ए इक्वल टू ई के प्लस एच, राइट? सेकेंड इक्वेशन वॉज माइनस ए ई प्लस ए इज इक्वल टू ई के माइनस एच, राइट? सो अगर हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू के एंड एच की वैल्यू मिलेगी, के एंड एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई, राइट? कैसे? अगर इसको सीधा सीधा जो है वो करेंगे तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 2 टाइम्स ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई के। सो के क्या हो जाएगा? ए बाई ई, राइट? ओके, सो के इज ए बाई ई। नाउ अगर हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ए ई प्लस ए इक्वल टू ई के प्लस एच अपॉन माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ई के माइनस एच। नाउ वी सब्सट्रैक्ट, सो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, राइट? सो ये हो गया टू टाइम्स ए, ये कैंसल, इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं ये कैंसल, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच। सो आपका एच इज ए ई। ओके ओके, लेट मी क्विकली ड्रॉ अगेन, और हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट दैट एक्चुअली इज। सो अगेन हमने अभी तक क्या निकाला? ये इलिप्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये था k टाइम्स 0 विच मीन्स व्हाट? a बाई ई कॉमा 0, राइट? आपका h फोकस था h, s, h0 विच इज व्हाट? s नाउ a टाइम्स e कॉमा 0, राइट? और आपका जो a पॉइंट था, a वॉज a0, राइट? सो देखो अभी ये क्या हो गया? s इन द फॉर्म ऑफ a e 0, k ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ a बाई e, राइट? अगर वैसे इधर जाएंगे हमको एस डैश मिलेगा माइनस एच 0 विच इज एस डैश इज माइनस ए ई 0, योर a डैश इज माइनस a 0 एंड योर z इज माइनस k 0 विच इज माइनस a बाई ई कॉमा 0, राइट? हमने एक सिमिलैरिटी, एक कंपैरिजन डिफाइन कर दिया अभी, राइट? सो आपका फोकस क्या होता है? a टाइम्स e। आपका a क्या है? ये लेंथ है, मेजर एक्सिस की लेंथ। टोटल
टोटल मेजर एक्सिस नहीं, टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ए डैश ए, दैट इज राइट, बट उसकी लेंथ क्या है, हाँ, लेंथ ऑफ ए डैश इज व्हाट, 2a, यस करेक्ट। नाउ अनदर वन, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया दूसरा फोकस, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, ट्वाइस एच, दैट इज राइट, बट एच की हमने वैल्यू निकाल ली है अभी, विच इज ए, तो 2 टाइम्स ए ई, एस डैश एस, ओके। सो यहां तक हम आ गए, ये पता है हमें, राइट। सो अभी नाउ टेल मी, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ पे कट करता है के जीरो, विच इज ए बाई ई जीरो, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए बाई ई, सो एक्स माइनस ए बाई ई इक्वल टू जीरो, ये एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, एंड दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा एक्स प्लस ए बाई ई इक्वल टू जीरो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया हमें, राइट। सो एक एक एनालिसिस करके हमने काफी सिमिलैरिटीज निकाल ली है, ओके। सो कौन सी चीजें याद रखनी है हमें, एस इज ए ई, पॉइंट ए इज ए जीरो, पॉइंट जेड इज ए बाई ई जीरो, ये एंड ये, और ये इक्वेशन and ये equation, these are important points, and the length between two vertex is 2a, length between two focus is 2ae, clear, okay। now अभी कोई भी इलिप्स में ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस से पॉइंट P तक और P से M तक, फोकस S, S का कोऑर्डिनेट्स है ए ई जीरो, पॉइंट P का एक्स वाई हो सकता है, और ये जो M कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए ई, और वाई, वाई कुछ होगा उसका, राइट। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, वाई की जरूरत है क्या हमें, हम्म हम्म, हमें इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ पी एम, दैट इज व्हाट वी विल नीड, बट एनीवेज अभी यहाँ हमें इलिप्स में हमें पता है एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, राइट, which means length of SP is equal to E times length of PM, ओके। सो चलो पहले लेंथ ऑफ SP निकालते हैं, लेंथ ऑफ SP मतलब डिस्टेंस बिटवीन विच टू पॉइंट, पॉइंट ए ई जीरो एंड पॉइंट एक्स वाई, राइट। सो वो हो जाएगा रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, राइट, सिंपल। नाउ वी नीड लेंथ ऑफ PM, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर कोई लाइन है विच इज x माइनस ए बाई ई इक्वल टू जीरो, इसका कंफ्यूज नहीं होना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें m 1 है, y 0 है, और c माइनस ए बाई ई इक्वल टू जीरो, समझ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। सो ये पॉइंट P है, एक्स वाई है, पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या हमने लाइन एंड प्लेन में या स्ट्रेट लाइन में देखा है इसको, सो लेंथ PM क्या हो जाएगा,
ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये लाइन कौन सी है? लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड पॉइंट है आपका x1 एंड y1, राइट। सो x1 और y1, x और y को रिप्लेस हो जाएगा। ओके, आपका a क्या है? 1, x1 क्या है? x, राइट। p इज xy, p xy ना, x प्लस b क्या है? 0, सो 0 इंटू y1, y जरूरत ही नहीं, 0 ही है, प्लस c क्या है? माइनस a बाई ई डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर, a इज अगेन 1, ये देखो यहाँ 1 है x का, 1 प्लस b 0 है, सो ए स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए बाई ई अपॉन रूट 1 इज फाइनली x माइनस ए बाई पी एम, राइट। ओके, सो हमने क्या किया था? लेंथ एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स लेंथ पी एम, लेंथ एस पी इज ई टाइम्स लेंथ पी एम। सो एस पी हमने क्या डिराइव किया था? रूट x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम क्या है? x माइनस ए बाई ई, राइट। ओके, सो अभी यहाँ भी मॉड्यूलस है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो बेस्ट वे इज स्क्वायर बोथ साइड्स। ओके, सो वी व्हेन वी अभी इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर x माइनस ए स्क्वायर। ओके ओके, सो ये हो जाएगा। अब नाउ इसको अभी लंबा चौड़ा इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये e को मैं अंदर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा ex माइनस ए का स्क्वायर, राइट। नाउ आई विल स्क्वायर दिस, e स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2eax प्लस ए स्क्वायर। सो ये माइनस 2aex और ये तो गया। ओके, हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ओके ओके, सो ये जो एक्स स्क्वायर है वो टर्म मैं इधर लेके जाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग? तो हमारी वैल्यू, हमको अभी क्या करना है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से सबको डिवाइड करना है, बट वेन एवर वी डिवाइड वी शुड नॉट डिवाइड बाय 0, राइट राइट, 0 से डिवाइड नहीं करना। सो वी हैव टू वेरीफाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर 0 है क्या। ओके, सो 1 नाउ ई की वैल्यू है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब एक ले लेते हैं 0.5 लेके चले तो चलेगा।
सो 1 माइनस 0.5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 पॉइंट, यस, 0.25, which is 0.75, which is greater than 0. सो ये वाली टर्म इज ग्रेटर देन 0. अभी कोई भी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है. सो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो डिवाइड करके चलेगा हमें. यस, यस. ओके, सो लेट्स डिवाइड. एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर plus y square divided by a square 1 minus e square equal to a square 1 minus e square divided by a square 1 minus e square. ओके, सो ये गया, ये गया. सो बचा हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. राइट. सो यहाँ पे मैं ये जो टर्म है इसे कहूँगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. अभी फॉर टाइम बीइंग जस्ट कीप दिस इन माइंड कि बी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट, हम ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दिया हमने बी स्क्वायर. सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका मीनिंग क्या है? एलिप्स है, इसके इसका फोकस है माइनस ए ई जीरो, इसका फोकस है ए ई जीरो. राइट. इसका ये है ए जीरो, ये है माइनस ए जीरो, ये है पॉइंट बी था, ये था 0 b, और ये है 0 माइनस बी. एंड व्हाट इज बी? बी इज रिलेटेड टू ये इसमें जो सारे ए है एंड ई है. हाउ इज बी रिलेटेड? बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. सो ये जो लेंथ बी है is a times root 1 minus e square. Right? That is the relation between, that is how we find out b. Okay, so this is the equation of ellipse, जिसमें आपको मेजर एक्सिस is 2a, यहां से यहां तक. माइनर एक्सिस इज यहां से यहां तक, which is 2 times b. Right? अभी इसमें we know 2a is greater than 2b. सो ए इज ग्रेटर देन बी. सो ये जो टाइप का इलिप्स है, इन दिस इलिप्स ए इज ग्रेटर देन बी. बट देर आर अदर इलिप्स जहां पे ए इज लेस देन बी. ये है 2a और ये है 2b. ओके, ओके. सो इस चीज में कोई क्वेश्चन, ये जो हमने डिराइव किया इसमें कोई क्वेश्चन? ओके, सो हम लोग यहीं रुकते हैं and then we'll continue from here in next class. Okay, good. Okay, chalo, see you, bye bye.